حقائق ٹی وی اور ہمارے مہمان جناب نور محمد قصوری صاحب جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ایڈوائزر رہے اور ان کی دو اہم ترین وزارتوں کو دیکھتے رہے۔ آج ہم یہ خصوصی طور پہ پروگرام کر رہے ہیں ایشیا کا ایک عظیم شخص، عظیم سیاستدان، عظیم مفکر، عظیم قانون دان جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا، وہ آج کے دن ہی پیدا ہوا۔ لوگوں نے، بہت سے بدخواہوں نے، میں لوگوں نہیں کہوں گا، بہت سے بدخواہوں نے اس کو ایک متنازع شخصیت بنا دیا، لیکن پاکستان کو جو تحفظ وہ دے گیا وہ کسی کے نصیب میں صدیوں تک نہیں ہوتا۔ ایٹم بم کا بنانا، اسلامک سمٹ کروانا یہاں پہ، اور ان عوام کو جن کو یہ لوگ، یہ سیاستدان، یہ کچھ جال ساز بھیڑ بکریاں سمجھتے تھے اور بھیڑ بکریاں سمجھ کے انہیں ہانک کے جہاں مرضی لے لیتے تھے، ان کو زبان دینا، یہ اس کے چند بڑے کارناموں میں سے تھا۔ جناب نور محمد قصوری صاحب طالب علمی کے دور سے ہی بھٹو صاحب کے شہدائی اور ان کے ساتھی رہے۔ آج ہم ان سے ان کی کچھ یادیں تازہ کریں گے، ان کی پہلی ملاقات کی بھی اور اس کے درمیان میں بھی جو بھی ملاقاتیں ان کی ہوئی ان کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جب ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو وہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں 52 ایئر بیک پہ چلا گیا۔ 52 ایئر پہلے جب ان کو پہلی مرتبہ میں نے بہت قریب سے دیکھا، 27 نومبر سن 1967 کو، تو اس وقت میرے ذہن میں ذوالفقار علی بھٹو کی وہ شخصیت تھی جو بطور وزیر خارجہ، وزیر پیٹرولیم، وزیر صنعت و پیداوار اور دوسرے قسم کے ایک اچھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹ، اچھا ایک ایڈمنسٹریٹر، اچھا پاکستان کا کیس پلیڈ کرنے والا۔ لیکن جب ساتھ ان کے ہم نے چلنا سفر شروع کیا، میرا ان کے ساتھ جو سفر تھا، جب میں نے محسوس کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو ذوالفقار علی بھٹو وہ ایک روایتی سیاستدانوں میں سے نہیں ہے، وہ ایک عظیم فلاسفر، ایک عام آدمی سے محبت کرنے والا اور پاکستان کو ایک بہت اعلیٰ سطح پر لے جانے والا شخص ہے، تو میں نے عملی طور پر ان کے ساتھ ایک سفر شروع کر دیا۔ وہ ایک کہہ سکتے ہیں قائد اعظم کی شخصیت سے متاثر ایک نوجوان سیاستدان، چوائن لائی اور ماؤ زیتونگ کی اصلاحات کو عوام کی فلاح و بہبود کے مطابق سمجھنے والا انسان ذوالفقار علی بھٹو، وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے عوام کو وہی سہولتیں حاصل ہوں، وہی ریفارمز یہاں آئیں کسانوں کے لیے، طالب علم، جیسا کہ چائنا نے ایک عملی انقلاب لا کر اپنے عوام کے لیے شروع کیا ہے۔ تو انہوں نے اس روایتی نظام ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں سٹیٹس کو کا یا روایتی نظام یا کالونیل سسٹم، اس سے ہٹ کر اس سے سازش نہیں شروع کی کہ یا وہ مطلب سازش میں کسی بیرونی انٹرنیشنل پلیئرز کا سہارا لیتا یا یہاں کے لوکل جو پلیئرز تھے جو اس وقت مطلب ایڈمنسٹریشن میں یا اسٹیبلشمنٹ میں تھے ان کا سہارا لینے کے بجائے اس نے وہی رستہ اختیار کیا جو قائد اعظم کا رستہ تھا، کہ انہوں نے عوام میں شعور پیدا کر کے عوام کو ان کے فیوچر کے متعلق، ان کے مستقبل کو بتا کر کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہونا چاہیے اور پاکستان میں کیسے لوگ خوشحال ہو سکتے ہیں، عوام کیسے طاقتور، انہوں نے اپنی جدوجہد شروع کی۔ میری جو ان سے عملی ملاقات، جو پہلی ملاقات ہوئی، وہ 6 جنوری 69 کو فلیٹی ہوٹل میں ہوئی۔ 5 جنوری کو انہوں نے جب یحییٰ خان نے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی تو 5 جنوری کو انہوں نے جلسہ کیا یہاں موچی دروازے میں۔ بہت بڑا جلسہ تھا، یہ کہہ سکتا ہے کہ موچی دروازہ پورا فل بھرا ہوا تھا،
बावजूद उस वक्त ज़माने में तो पॉलिटिकल पार्टियों के पास आज जैसे वसाइल नहीं होते थे, लेकिन सिर्फ एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत थी। उसको देखकर, उसको सुनने के लिए, उसकी सोच के मुताबिक लोगों ने भरपूर, लाहौर के लोगों ने उसका साथ दिया और पूरा मोची दरवाज़ा, इर्दो गिर्द के मकानात, सड़कें, मैं ये समझता हूँ उसके बाद मोची दरवाजे में वो जो जोश व जज्बा देखा वो आज तक मैंने फिर उसके बाद किसी जलसे में नहीं देखा। तो अगले दिन मैं क्योंकि स्टेशन से कसूर जाना था, लेकिन इत्तेफाक से गाड़ी निकल गई, तो वो रात गाड़ी पे जाने के बजाय मैं फिर पैदल ही या फ्लैटी, मैंने कहा चलो बस पे जाता हूँ। वो बस पे जाने के लिए जब मैं फ्लैटी होटल के करीब से गुजरा तो वहाँ बड़ा हजूम था लोगों का, गाड़ियों का। ये तो मैंने पूछा किसी बंदे से कि क्या, क्यों ये हजूम क्यों है? हालांकि मैं तो उस वक्त बड़ी मुश्किल से, मेरी उम्र 14 साल या 15 साल उम्र थी, लेकिन एक शौक था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कि मैं करीब से देखूं, उनसे हाथ मिलाऊं। तो वो किसी ने वहाँ बताया कि यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ठहरे हुए और मतलब ये लोग उनसे मिलने के लिए हैं। तो मैंने भी सिर्फ इस सोच के तहत, ज़ाहिर मेरा उस वक्त कोई विजन नहीं था, कोई सोच नहीं थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा सियासी लीडर है और मैं इससे हाथ मिलाऊं ताकि मैं कसूर में जाके लोगों को, अपने साथियों को, अपने अजीज़ वकारों को ये बताऊं कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो से सिर्फ हाथ मिला के आया हूँ। मुझे क्या पता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो साथ हाथ मिलाना है मेरे लिए दुनिया में सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, अवामी तौर पे कितने बड़े रास्ते खोलेगा। तो मैं वहाँ अंदर चला गया फ्लैटी होटल में, तो भुट्टो साहब ठहरे हुए, तो जो मैं भी एक सोफे में, कोई लोगों के साथ सोफों पर लोग बैठे हुए थे, मैं भी बच्चा तो था ही, मैं किसी ने इतराज़ नहीं किया मेरे बैठने पर। तो जब भुट्टो साहब आए तो सब लोगों से वो मिल रहे थे, तो जब मेरे पास पहुंचे तो वो देखकर, छोटा सा बच्चा है, मुझसे पूछे बेटे तुम किसके साथ हो? मैंने कहा मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं खुद आया हूँ। तो उन्होंने कहा तुम क्यों आए हो? मैंने बताया, मैं कहा मैं आपको मतलब है कि देखना चाहता हूँ, आपके साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा वो क्यों? मैंने कहा आप पाकिस्तान के लीडर हैं। तो उसने कहा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं दरस निज़ामी पढ़ रहा हूँ, इस्लामी किताबें, और साथ मतलब कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा हूँ। तो मैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं अखबार में पढ़ा है, मैंने अखबार में शौक से पढ़ता हूँ, फिर मुझे रेडियो भी सुनता हूँ, तो मुझे पता है कि पाकिस्तान के आप बहुत बड़े लीडर हैं। तो उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा जी वो सलामती कौंसिल में जो आपने स्पीच की थी, तो भुट्टो साहब ने कहा वो तो अंग्रेजी में थी। तो मैंने कहा ठीक है भुट्टो साहब, मुझे अंग्रेजी तो नहीं आती थी, लेकिन जब आप मुक्का मार कर और जोर से पाकिस्तान का नाम लेते थे तो मुझे यूं महसूस होता था कि आप पाकिस्तान की कोई भलाई की बात कर रहे हैं। तो वो दिन था, भुट्टो साहब ने मेरे साथ हाथ मिलाया और उन्होंने कहा शौक से कि आप हमारी पार्टी के लिए काम करोगे? तो मैंने कहा बिल्कुल मैं करूँगा, और मेरे ये सियासत की इब्तिदा शुरू हुई। उसके बाद एहसान साहब, मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा एवेन्यू, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत क्या थी कि मेरे लिए फिर रास्ते में उम्र, बरादरी, तालीम, पैसा, कोई चीज़ रुकावट ही नहीं रही। और मेरी ये सोच बढ़नी होगी कि मुझे भी भुट्टो साहब के साथ अब कौमी असम्बली में पहुंचना है, उनके साथ में, मतलब पहले मतलब है कि उनके साथ तो बिल्ड होगी सो। तो फिर ये है कि 70 का जो इलेक्शन हुआ उसमें मैंने बहुत इलेक्शन कैंपेन में रात दिन काम किया, और हमने भुट्टो साहब के लिए मतलब के साथ मतलब जलसों में जाना, जलूसों में जाना। तो ये इस तरीके से मेरा। अब आते हैं भुट्टो साहब की जो दूसरी शख्सियत, वो थी अवाम की ताकत। वो ये नहीं चाहते थे कि मतलब है कि वो रवायती तौर पर वो मतलब वही सियासत करें जैसे कि पहले सियासतदान करते थे। उन्होंने अवामी सियासत का आगाज़ किया और उन्होंने सियासत को ड्राइंग रूमों से निकाल कर खेतों में, खलियानों में, मैदानों में, मतलब स्टूडेंट के लिए, वकला के लिए, तमाम के लिए रास्ते खोले। और एक वक्त आया कि ऐसे ऐसे लोग जो कभी सियासत में थे ही नहीं, और पहली मर्तबा भुट्टो साहब के नाम पे वो MNA MPA हो गए, और मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है एक ताकतवर पार्टी के तौर पर बहुत थोड़े वक्त में। ये भुट्टो साहब की करिश्मेटिक पर्सनैलिटी थी जिसकी वजह से भुट्टो साहब है बहुत जल्द पीपल्स पार्टी। अब आ जाते हैं हम तीसरी, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये नहीं किया कि वह हुकूमत को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल। उन्होंने उस वक़्त पाकिस्तान की ये सूरत हाल थी कि 90,000 बंदा हमारा दुश्मन, एक
दुश्मन मुल्क के मुल्क पास की, था। हाँ कैद में था। क्या था? उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी शैटर हो चुकी थी। हमारे जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, दो टुकड़े होने के बाद इकोनॉमी हमारी जो वो मतलब उसमें इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट का जो हमारे आंसर से वो ख़त्म हो चुके थे, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को तो भुट्टो साहब ने ये नहीं किया कि लोगों से कई दो कर्जा ले, उन्होंने अरब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए। इंटरनेशनल जो ममालिक थे उस ज़माने वेलफेयर स्टेट है उनके साथ, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम किए और पाकिस्तान को एक अच्छे तरीके से लेके चले। और उन्होंने देखें उसी वक्त एक ऐसा फैसला किया कि पासपोर्ट आम आदमी के लिए कर दो। हाँ। उससे ये हुआ कि हमारे जो सारे मशरिक वस्ता यूरोप, ये वो हमारा उस जमाने में 50 लाख आदमी है वो ओपी बन के ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पे काम। और ये देखे एहसान साहब, आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो हमारी ये समझे ना स्ट्रेंथ है वही ओपीज की रेमिटेंस। उसके बाद इंटरनेशनल भुट्टो साहब की एक सोच थी कि पाकिस्तान को एक अपना रोल अदा करना है, एक तो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी तौर पर, और दूसरा इस्लामी दुनिया है जो उसका लीडर के तौर पे। फिर उन्होंने, आपने देखा होगा, आप हम लोगों से सीनियर लोग हैं, समझते हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल इस्लामी कॉन्फ्रेंस बनाई और वो इतनी कामयाब थी कि उस ज़माने में जो 45 ममालिक थे उनमें से 42 ममालिक के हेड ऑफ स्टेट ने, 3 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने और एक मुल्क ने जो वज़ीर वो अपने मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन थे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर वहाँ शिरकत की, बहुत कामयाबी हुई। उसके साथ अब आ जाए तो उन्होंने चाइना, जिसको एक उस ज़माने में या रूस ये कहा जाता था आनी कल्टन के लोहे का एक पर्दा, उनके साथ खसूसी ताल्लुकात कायम किए। और आज भी देख लें कि पाकिस्तान के साथ जो मजबूती से खड़ा हुआ है वही चाइना है। फिर पाकिस्तान का दूसरा, आप सिक्योरिटी को ले लें तो सबसे बड़ा जो आज भी हमारे पास जो सिक्योरिटी का जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम का है वो एटॉमिक बम है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी शख्सियात हैं रोज़ पैदा नहीं होती, और अब हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो फिलोसफर हैं, हमारे जो जुडिशरी के लोग हैं, उनको पुरानी गलतफहमियाँ और दूसरी चीज़ें भुलाकर आगे की तरफ देखना चाहिए कि अब किसी दूसरे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की, अब हमारे मुल्क में अब ये बेनज़ीर भुट्टो के साथ या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अब कोई तीसरा के साथ यही सलूक अब नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी आप ज़रूर करें, मैं अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा मतलब कायल हूँ, लेकिन इन जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है उसमें आप जो कोताहियाँ हो रही हैं, प्रोसिक्यूशन है वो बड़ी नरम हो रही है और सही तरीके से उसकी गवर्नमेंट है इमरान खान की वो परस्यूएट नहीं कर रही कि वो केसों को मतलब कि ऐसे दे रहे हैं जैसे आम बंद, वो 6-6 महीने की 4-4 महीने की तारीखें पढ़ रहे हैं और वो मिच्योर नहीं हो रहे। लोगों में एहसान साहब ये एहसास पैदा होता जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी के जो इदारे हैं वो नाअहल हैं। इवन के सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा। तो मैं ये इस बात के साथ ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, वक्त थोड़ा होने की वजह से, कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे शख्सियात, बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आपकी थोड़ी या कायदे आज़म की एक थोड़ी सी मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये तहैया कर लिया है कि हर केस 6 माह के अंदर अंदर ख़त्म होगा, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये जो भी इन लोगों ने जो भी लुटेरे थे, जो भी डाकू थे, जो भी हो उसको अब इंशाल्लाह 6 माह के अंदर अंदर अपने करतूतों का सिला मिल जाएगा। इसे अदलिया से हमें ये तवक्को है कि वो अब इन्हें मज़ीद ढील नहीं देगी, और जो कुछ ऐसे दोस्त हैं, ऐसे जिनको ये हदायत होती है उनके मौक्किल की तरफ से, उनके क्लाइंट की तरफ से कि डेट लेनी है जी, वो डेट लेने का रवाज भी अदलिया ख़त्म कर रही है। अब वकला को भी सोचना चाहिए कि हमारा क्लाइंट इस चीज़ का मतलब मैं आधा मिनट और लूँगा, सिर्फ आधा मिनट। मैं जैसा कि मैंने कहा था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत को अवाम की सतह पर लाने की कोशिश, उसका ये अमली सबूत है
मुझे खुद भुट्टो साहब ने, हालांकि मैं कोई रवायती तो ना कोई जागीरदार था ना कोई बहुत बड़ा डेरेदार, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुझे MNA का टिकट दिया। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर MNA का मैंने इलेक्शन, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई तो 2 मरतबा मैं सनअत व पैदावार का मशीर रहा। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का चेयरमैन बना, जो बहुत बड़ा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फोरम। तो ये जहांगीर बदर जो एक आम घर का आदमी था वो मरकजी वजीर बना। तो इस तरीके से अब जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत का जो काफिला शुरू किया था, उसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तौर पर ही साथ दिया। और ज़ियाउल हक की जो 10 साला आमरीत थी, उसके खिलाफ ना कोई कोड़ों से डरे, ना फांसियों से डरे, ना उनकी जेलें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पैगाम को लेने से हमें दूर रख सकी। और हमने सियासी तौर पर 88 में जाकर फतह हासिल की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बने। बहुत शुक्रिया सूरज साहब, आपने टाइम दिया और एक बड़े सियासतदान, एक बड़े सच्चे पाकिस्तानी की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। नाज़रीन, आपने भी इनकी मालूमात अफ़ज़ा बातें सुनी। दुआ करे कि अल्लाह हमारे मुल्क में ऐसे सियासतदान पैदा कर दे जिनके दिल में अवाम का जज्बा हो, ना कि अवाम की जेबें काटने का, ना कि डाके मारने का, ना कि लूटने का और ना कि झूठ बोलने का। ये झूठ जैसी लानत जब से सियासत में आ घुसी है, उसके बाद से सियासत की तबाही हो गई। और हैरानकुन बात यह है कि जो हमारे वोटर्स हैं वो भी नहीं देखते कि ये बंदा या बंदी कितने झूठ बोलते हैं। खुदा का वास्ता इस पे सोचें कि आप जो झूठ का साथ देते हो, आप अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इनका जवाब तो ये दे लोगे, इनकी शक्लें देख ली, इनके लच्छेदार बातें सुन ली, लेकिन आपने अल्लाह के पास भी तो जाना है ना। वहाँ आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। इनकी औलाद भी जो डाकों में हिस्सेदार है वो भी साथ नहीं देगी। बाकी आप जाने, आपका काम जाने, हमारा काम है आप तक पैगाम पहुँचा देना। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।